Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, welcome to lecture number 28, and we are continuing with this training, MS Project 2007 training. This is session number 2 on MS Project. As we have already told and discussed that we are having this session on MS Project. This seminar is on MS Project, but we had 2 opening seminars which were kind of preparatory for MS Project 2007 training. So those have been done, like network diagrams and earned value management, and then we had learned how to install MS Project 2007 and how to enter, how to change the date, and what is MS Project overview, and how to insert major and minor tasks, and how to change the bars. So the other day we were discussing about training, why that is been so important, and MS Project, how that can help us, and how to install that. And what is the definition of project, and how we create WBS. We had created one WBS the other day, and then we had discussed about time management processes. So when we were actually creating that WBS, we have insert that WBS. Now we will define activities in our MS Project file which we had created. And then we had inserted major and minor tasks over there. So we continue with that. The format is now very much clear. We will keep maneuvering from this lecture PPT to MS Project. So first we will understand. Now first step has already been done, and that is defining activities. Though we have simply inserted work packages, we can insert subtasks to that, and we will see how can we create those. But then the second step is we need to define the relationship, like if what is coming after what. So there are 4 types of relationships, and we had already discussed that. That is finish to start, start to start, and finish to finish, and start to finish. So these tasks has already been understood now. And now we need to set the task precedences. So अब हम वापस जाएंगे MS Project के ऊपर. So ये वो फाइल है जो हमने अगले दिन क्रिएट की थी, और इसको हम सेव किया फाइल. And if we click save or save as, so what will happen? It will ask कि हमें ये कहाँ करनी है. I will save this thing on desktop with the name of ComSets Virtual MS Training, and save. So file, save as, and eventually okay. So this is the shape we had, और जो पहला हमारा टास्क था वो हमने कंप्लीट कर लिया था, मेजर और माइनर टास्क. अब हम जब डिफाइन एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी हमें बेसिकली इसकी फर्दर कुछ 2 एक्टिविटीज़ जो हैं वो डालनी हैं. तो हम क्या करेंगे, इन दो एक्टिविटीज़ डालनी हैं. 2 रोज़ हमने न्यू टास्क एंटर करेंगे, और न्यू टास्क एंटर करना हमें आते हैं. कैसे करते हैं कि हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और शिफ्ट और कंट्रोल दबा के या शिफ्ट दबा के हम इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, या माउस के साथ हम दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, और फिर हम इंसर्ट, और इंसर्ट के अंदर है न्यू टास्क, इंसर्ट के अंदर है न्यू टास्क, इसको क्लिक कर देंगे, या राइट क्लिक करके भी हम कर सकते हैं. अच्छा जी, अब यहाँ हम सिलेक्ट लैंड के अंदर हम देख लेते हैं कि हमारी क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कि हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. इसके अंदर हम कर सकते हैं कि पहले तो हम सर्वे करें,
और सर्वे करने के बाद हम जो है वो इंफॉर्मेशन गैदर करें उस प्लॉट के बारे में या उस लैंड के बारे में, और जब वो हम कर लें देन वी मेक अ डिसीजन। तो अब हम इन दो को सब टास्क बना देते हैं इस वर्क पैकेज का। तो ये दो एक्टिविटीज़ हैं। अब सिलेक्ट लैंड की एक्टिविटीज़ हमने डिफाइन कर दी, सर्वे और ट्रांसफ़र। अब हम ट्रांसफ़र की बात करते हैं, तो ट्रांसफ़र की फर्दर फिर हमारी चीज़ें आ जाएंगी। 3 हम एक्टिविटीज़ जो हैं यहाँ इंसर्ट करते हैं। ट्रांसफ़र की पहली जो एक्टिविटी हम इंसर्ट करते हैं वो है, लेट्स से हम कहते हैं कि जी नेगोशिएशन है प्राइस का, नेगोशिएशन। ये हमारा एक टास्क है या एक एक्टिविटी है। जब वो नेगोशिएट हो जाती है तो फिर हम पेमेंट कर देते हैं उसकी, और फिर हम जो है डिपार्टमेंटल या गवर्नमेंटल जो भी हमारे इश्यूज हैं, डिपार्टमेंटल अप्रूवल उस कॉन्ट्रैक्ट की वो करवा लेते हैं या नोटिफाई करवा लेते हैं। अब ये 3 जो हैं इनको हम सबऑर्डिनेट कर देते हैं। तो अब इस वर्क पैकेज की भी एक्टिविटीज़ डिफाइन हो गई, और इसी तरह हम बाकी जो है वर्क पैकेजेस हैं उनकी भी हम कर सकते हैं। जिस तरह अभी हम देखते हैं कि एक्सकवेशन है, इसकी अगर मैं करूं तो 2 हम इसमें टास्क एंटर कर सकते हैं, और अरेंजिंग मशीन एक्सकवेटर, दैट इज अ मशीन, और उसके बाद एक्सकवेशन इटसेल्फ। और लेकिन उससे पहले हम एक और एंटर करना चाहेंगे, लेआउट, कि लेआउट उसका कहाँ से उसने करना है। सो ये एक और एक्टिविटी हो सकती है। सो एक्सकवेशन को 3 हमने एक्टिविटीज़ डिफाइन कर दी। फाउंडेशंस की अगर हम बात करें तो फाउंडेशंस के अंदर हम 3 एक्टिविटीज़ देख लेते हैं। फाउंडेशन के अंदर जो पहली एक्टिविटी हम देख सकते हैं वो हो सकती है, हम एक एक्टिविटी ले लेते हैं लीन कंक्रीट, ये ले कर देना। उसके बाद ब्रिक वर्क हम ले लेते हैं, और फिर हम जो भी हमारी चीज़ें हैं लाइक हम जो डैम प्रूफिंग कर लेते हैं, जो भी चीज़ें हैं। सो इस तरह की हम काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जो हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या इसमें करना चाहते हैं। तो इसी तरह आपने वर्क पैकेजेस बना लिए, और आप कभी भी किसी भी वर्क पैकेज की एक्टिविटीज़ कर लेते हैं। तो जो हमारा सेकंड प्रोसेस है टाइम मैनेजमेंट का, वो है एक्टिविटी को डिफाइन करना। वो हमने लिस्ट कर लें या उसको एट्रीब्यूट्स निकाले हुए हैं आपने, आप उसको यहाँ एंटर कर रहे हैं। और उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप था, और साथ साथ आप इस काम को सेव भी करते जाएं। सो आई एम एक्चुअली सेविंग दैट। सो अब जो हमने ऑलरेडी जो इसको बना लिया वर्क प्लान को, तो अब हमने देखना है कि इन एक्टिविटीज़ का आपस में रिलेशनशिप क्या है। अगर मैं एक एक्टिविटी लेता हूं सर्वे की, तो सर्वे एक्टिविटी जो है वो किसी और एक्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सर्वे जो है वो एक इंडिपेंडेंट, वो हमने शुरू में खुद से ही करना है, और उसके बाद इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो है वो जो हम सर्वे कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट होगी। अब देखें ये जो सर्वे है ये किस रो के ऊपर पड़ा हुआ है, कौन सी रो के ऊपर पड़ा हुआ है, उसका नंबर देखें, उसका नंबर यहाँ आ रहा है 4। सो दैट इज टास्क नंबर 4 ओवर देयर। अच्छा, मैंने एक चीज कहा था, मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये सारे को टास्क क्यों कहता है एमएस प्रोजेक्ट। उसकी रीजन ये है कि ये प्रोजेक्ट है, ये वर्क पैकेज है, ये कंट्रोल अकाउंट है, ये वर्क पैकेज है, ये एक्टिविटी है। अगर यहाँ एक्टिविटी लिखा होता तो ये भी एक्टिविटी हो जाता। टास्क लिखने से मतलब ये है कि जिसके अंदर एक्टिविटीज, वर्क पैकेजेस, प्रोजेक्ट सब कुछ आ गया। ओके, अब हमारा जो सर्वे है ये कौन से टास्क नंबर पे है? 4 नंबर टास्क पे है, 4 नंबर टास्क सर्वे। और इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्लॉट्स इज ऑन 5 नंबर।
सो अब हम यहाँ क्या करेंगे कि जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन के बिल्कुल सामने आके जो अगर तो आपका ये जो है विंडो इस तरह है, इसको पकड़ करके लेफ्ट क्लिक दबा के रखेंगे और साइड पे कर देंगे। ओके, अब इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन के अंदर प्रीडिसेसर का एक आपके पास कॉलम है, आपने इसके अंदर इसका प्रीडिसेसर एंटर करना है। सो इसका प्रीडिसेसर कौन सा होगा, वो है सर्वे। सो इंफॉर्मेशन का प्रीडिसेसर सर्वे, उसका नंबर क्या है 4। आपने करना है 4, यानी कि जो टास्क नंबर है, और इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, फिनिश टू स्टार्ट, FS। जैसे ही आप FS करेंगे और एंटर करेंगे, ये क्या करेगा कि 4 कर देगा और FS खत्म कर देगा। बाय डिफॉल्ट जो मेजॉरिटी ऑफ रिलेशनशिप्स हैं वो हमें पता है कि वो आपके फिनिश टू स्टार्ट होते हैं, तो इसलिए उसने क्या किया कि एक रिलेशनशिप जो है उसको FS खत्म कर दिया। लेकिन अगर हम इसके साथ SS करते तो वो रिलेशनशिप ये रहने देता। जिस तरह मैं दोबारा करता हूं 4SS, और आप देखेंगे कि 4SS जो है वो उसने कर दिया। लेकिन मैं जो रिलेशनशिप चाह रहा हूं वो 4FS है, एंटर करूंगा। तो अब इसके अलावा कुछ हुआ है। एक तो अगर आप अपना गैंट चार्ट को यहां ले आए तो आप देखेंगे कि एक एरो निकला है और इसके अंदर वो चला गया। सो जब ये खत्म हो रहा है तो ये स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एक्टिविटी इस एक्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंट है, ये यहां से हमें पता चल रहा है। तो एक तो ये चीज होगी। दूसरा, आप देखेंगे कि जो पहले ड्यूरेशन थी हमारे सिलेक्ट लैंड की, वो 1 दिन थी और क्वेश्चन मार्क था। अब उसने क्या किया है, इनका क्योंकि आपस में रिलेशनशिप डिफाइन हो गया है, तो 1 1 एंड क्वेश्चन मार्क, क्या इसकी ड्यूरेशन 1 दिन है, क्या इसकी ड्यूरेशन 1 दिन है, इसकी ड्यूरेशन 1 दिन है। अगर हाँ तो वो क्या कह रहा है 2 दिन है टोटल ड्यूरेशन, अभी आपसे पूछ रहा है। लेकिन अगर आप इन दोनों की ड्यूरेशन डिफाइन कर देंगे तो वो ये फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इसकी ड्यूरेशन कितनी होगी। और फिर लैंड एक्विजिशन की ड्यूरेशन डिपेंडेंट है फर्दर उन चीजों के ऊपर। ये जो माइनस साइन आ रहा है आप इसको क्लिक भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक दैट, प्लस माइनस, यानी कि आप एक्टिविटीज को क्लोज कर सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं। जैसे सेलेक्ट लैंड की 2 एक्टिविटीज हैं, आप इस वर्क पैकेज को अगर क्लोज करेंगे तो ये गायब हो जाएंगे और यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा। इसी तरह आप लैंड एक्विजिशन को भी क्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, बट एनीवेज ये हम मुख्तलिफ चीजें इसके साथ प्ले कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आ गया प्रीडेसेसर्स, ये क्लियर हो गया, इसका रिलेशनशिप हमें फाइनल हो गया। अब आपने नेगोशिएशन जो करनी है प्राइस की, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है। आपने याद रखिएगा जो रिलेशनशिप्स हैं वो एक्टिविटी लेवल पे रखें, कोशिश करें वो एक्टिविटी लेवल्स पे रखें। अगर किसी वर्क पैकेज की एक्टिविटीज नहीं है तो फिर उस वर्क पैकेज को डालें। अगर किसी वर्क पैकेज की एक्टिविटीज हैं तो रिलेशनशिप आप उसकी एक्टिविटीज के साथ बनाएं, ना कि उस वर्क पैकेज के साथ करें। जिस तरह अब हम इस एग्जांपल को लेते हैं ट्रांसफर, तो हमारा रिलेशनशिप ट्रांसफर और लैंड एक्विजिशन ना रखें जी, लैंड एक्विजिशन के बाद ट्रांसफर होगा। आप रखें नेगोशिएशन ऑफ प्राइस के साथ, जो इसकी एक्टिविटी है और इसकी एक्टिविटी है। अच्छा, अब हम देखते हैं नेगोशिएशन ऑफ प्राइस कब कर सकते हैं, जब हमारे पास इंफॉर्मेशन हो, और जो इंफॉर्मेशन है उसका टास्क नंबर क्या है, उसका टास्क नंबर है 5। तो हम यहाँ क्या करेंगे 5 और FS, फिनिश टू स्टार्ट। जैसे ही हम प्रीडेसेसर्स में किया और एक एरो आएगा और वो एरो यहाँ आ जाएगा, इस एक्टिविटी से निकला इंफॉर्मेशन से और होता हुआ वो इस जगह आ गया। उसके बाद पेमेंट्स जो करनी है ऑब्वियसली वो नेगोशिएशन के बाद में होंगी। सो जो पेमेंट्स का टास्क नंबर क्या है, वो है 8। सो पेमेंट का टास्क नंबर 8 है और नेगोशिएशन ऑफ प्राइसेस का नंबर 7 है। पेमेंट्स आपने उसी वक्त करनी है जब आपकी नेगोशिएशंस हो चुकी हैं, सो उसके बाद ही पेमेंट करेंगे। तो नेगोशिएशंस होने के बाद है तो रिलेशनशिप हो गया फिनिश टू स्टार्ट, और पेमेंट के सामने आके प्रीडिसेसर में आप लिखेंगे 7 एंड FS and you will get something like that.
डिपार्टमेंटल अप्रूवल कब चाहिए आपको? जब आप पेमेंट्स कर लेंगे तो आप 9 जो टास्क नंबर है वो है डिपार्टमेंटल अप्रूवल, और उसकी आपने उसके प्रीडिसेसर में लिखेंगे आप 8 एंड एंटर। इस 8 का क्या मतलब है कि जो टास्क नंबर 9 है वो 9 जो है वो 8 के ऊपर डिपेंडेंट है। पोजेशन आपको कब मिलेगा? पोजेशन आप देखें, ये जो डिपार्टमेंटल अप्रूवल थी ये एक्टिविटी थी, और ये पोजेशन जो है ये आपका वर्क पैकेज है। इनकी आप अलाइनमेंट से भी अंदाजा कर सकते हैं, और इसके अलावा हम WBS कोड्स भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम उस तरफ नहीं जा रहे। पहले हम कुछ बेसिक्स कर लें, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि WBS कोड्स कैसे हम यहाँ देख सकते हैं। अब पोजेशन का कोई फर्दर एक्टिविटी नहीं है, ये एक वर्क पैकेज ही है। तो हम क्या करते हैं, जो इस वर्क पैकेज की आखिरी एक्टिविटी थी उसके ऊपर इसको डिपेंडेंट कर देते हैं। तो हम पोजेशन को डिपेंडेंट कर देते हैं 9 के ऊपर। या तो आप 9FS लिखते हैं, या बाय डिफॉल्ट आप सिंपल वो नंबर लिख के, टास्क नंबर लिख के भी एंटर करेंगे तो वो इसको फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप करेगा। यहां कुछ ऐसी चीज हुई है जो कि डिस्कस करनी जरूरी है। अगर आप टोटल देखें तो ये जो एक्टिविटी है ये खत्म हो रही है फ्राइडे को, और ये एक्टिविटी शुरू हो रही है मंडे को। तो दरमियान में 2 दिन जो है वो गैप आ रहा है। ये 2 दिन क्यों गैप आ रहा है? बेसिकली ये 2 छुट्टियां हैं, सैटरडे और संडे की, तो इस वजह से गैप आ रहा है। आप इस गैप को खत्म भी कर सकते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप संडे सैटरडेज को भी काम करते हैं, तो इसलिए हम जब कैलेंडर्स में जाएंगे तो हम इसको थोड़ा सा रिफाइन करेंगे। अब आ जाएंगे डिजाइन्स पे। तो डिजाइन्स आप उसी वक्त कर सकते हैं जब आपके पास डिपार्टमेंटल अप्रूवल आ चुकी हो। पोजेशन अभी नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंटल अप्रूवल के बाद आप आर्किटेक्ट को हायर कर सकते हैं। तो आपने क्या कहा कि पोजेशन तो हो ही जाना है, तो उसका इंतजार करने के बजाय हम डिपार्टमेंटल अप्रूवल के ऊपर बेस करते हैं। तो डिपार्टमेंटल अप्रूवल का टास्क नंबर क्या है? 9। तो अब यहाँ के एंटर करेंगे आर्किटेक्चरल डिजाइन के सामने प्रीडिसेसर में 9 एंड एंटर। और इधर देखें, अगर आप डिजाइन्स के अंदर देखें तो इसकी ड्यूरेशन जो है वो 6 डेज हो गई है। हालांकि हमने बेसिकली उसके अंदर अभी ज्यादा नहीं किया कि कितनी हमारी वो चीज आएगी, बट एनीवेज स्ट्रक्चरल डिजाइन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ऑब्वियसली आर्किटेक्चरल डिजाइन के ऊपर, और आर्किटेक्चरल डिजाइन का टास्क नंबर है 12। सो स्ट्रक्चरल डिजाइन के सामने प्रीडिसेसर के अंदर एंट्री आएगी 12 की, और अब देखेंगे रिलेशनशिप यहाँ डिफाइन हो गया। अब आप जरा गैंट चार्ट के ऊपर आ जाइए। गैंट चार्ट के ऊपर देखेंगे ये जो एक्टिविटी है ये वाली, इससे इधर भी जा रहा है और इस एक्टिविटी से इधर भी आ रहा है रिलेशनशिप, यानी ये एक्टिविटी भी इस पे डिपेंडेंट है, ये एक्टिविटी भी इस पे डिपेंडेंट है। तो ये जो एक्टिविटी है इसको हम बर्स्ट एक्टिविटी बोलते हैं। अब दोबारा टास्क एरिया पे चले जाइए। जब भी कोई ऐसा आ जाए जिसमें वो आपसे क्वेश्चन करे उसको कैंसिल कर दें, क्योंकि हमको डायलॉग बॉक्स नहीं चाह रहे थे। ओके, अब ड्राइंग्स किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है? ड्राइंग्स आर्किटेक्चरल डिजाइन के ऊपर भी डिपेंडेंट है और स्ट्रक्चरल डिजाइन के ऊपर भी डिपेंडेंट है। अब यहाँ ट्रिक आ गया, यहाँ ये हुआ कि एक एक्टिविटी जो है वो 2 एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंडेंट है। जब आर्किटेक्चरल डिजाइन होगा तो फिर भी ड्राइंग्स बनेंगी, और जब हमारा स्ट्रक्चरल डिजाइन होगा तो फिर भी हमारी ड्राइंग्स बनेंगी। तो इसके लिए फिर हम जो ड्राइंग्स के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा आर्किटेक्चरल डिजाइन का और स्ट्रक्चरल डिजाइन का। आर्किटेक्चरल डिजाइन का अब नंबर है, टास्क नंबर है 12, और स्ट्रक्चरल डिजाइन का नंबर है 13। सो ड्राइंग्स इज डिपेंडेंट ऑन 12 FS, और अब यहां आप डालेंगे कॉमा, और 13 FS एंड एंटर। तो यहां देखिए उसने खुद ही 12,13 कर दिया। अब ये देखें कि अगर इस एक्टिविटी को देखें आप, जो कि ड्राइंग्स का जो बार है जो आपके गैंट चार्ट के ऊपर है, उसके अंदर देखें कि 2 एरोज आ रहे हैं,
एक एरो आ रहा है स्ट्रक्चरल से और स्ट्रक्चरल डिजाइन से, और एक एरो आ रहा है आर्किटेक्चरल डिजाइन से। तो इस तरह आपका ये रिलेशनशिप भी फाइनलाइज हो गया। उसके बाद लेआउट डिजाइन जो है, लेआउट डिजाइन बेसिकली आपका डिपेंड करेगा ड्राइंग्स के ऊपर, और इसको आप लिख देंगे, और ड्राइंग्स का नंबर है 14। सो लेआउट के सामने प्रीडिसेसर के कॉलम में आप एंट्री देंगे 14 की एंड एंटर। अब हमारे जो प्रीडिसेसर्स हैं वो डिजाइन्स के भी कंप्लीट हो गए हैं, और हमारे लैंड एक्विजिशन के भी हो गए हैं, और डिजाइन्स के, इनको हम क्लोज कर लेते हैं। और अब हम सिविल वर्क्स में देखते हैं। सिविल वर्क्स के अंदर एक हमारी एक्सकवेशन का वर्क पैकेज है और एक फाउंडेशन का है, लेकिन उनकी फर्दर हमारे पास एक्टिविटीज हैं। तो अब हम इनको एंटर करना चाहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो किन एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो हम बेसिकली बाकी वाले जो हमने क्लोज किए थे वर्क पैकेज, उनको दोबारा ओपन कर लेते हैं। और अरेंजिंग एक्सकवेटर, जो अरेंज करना है एक्सकवेटर, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? ये बेसिकली डिपेंड करता है जो हमारा लेआउट डिजाइन है, उससे पता चलेगा कि हमने एक्सकवेशन करनी भी है या नहीं करनी, ये कितनी करनी है। तो एक्सकवेटर हम उस हिसाब से, वो मशीन मंगवानी है या पर्सन मंगवाने हैं। सो एक्सकवेटर को अरेंज हम करेंगे लेआउट डिजाइन के ऊपर, और लेआउट डिजाइन का जो नंबर है वो है 15, और हम यहां एंटर कर देंगे 15। और लेआउट जो है, जो हम फिजिकल लेआउट करेंगे, या जो हम प्लॉट के ऊपर चूने से निशान लगाते हैं कि इसके अंदर अंदर खुदाई करनी है, तो वो डिपेंड करेगा हमारा अगेन लेआउट डिजाइन के ऊपर, जिसका नंबर है 15। तो हम दोबारा 15 जो है वो एंटर करेंगे। और एक्सकवेशन हम किसके ऊपर डिपेंडेंट होगी? एक तो एक्सकवेटर आना चाहिए और दूसरा लेआउट होना चाहिए। तो हमारी दो चीजों के ऊपर आ जाएगा, अरेंजिंग एक्सकवेटर और लेआउट। अरेंजिंग एक्सकवेटर का नंबर है 18 और लेआउट का नंबर है 19। तो हमारी एक्सकवेशन की जो डिपेंडेंसी आ जाएगी वो आ जाएगी 18,19 एंड एंटर। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो बेसिकली ये कुछ जो है चीजें खुद से ठीक हो जाएंगी। ओके, अब हमारा फाउंडेशन आ गया। फाउंडेशन किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है? फाउंडेशन चीज पे डिपेंडेंट है कि हमारी एक्सकवेशन कंप्लीट हो जाए, और एक्सकवेशन की लास्ट जो एक्टिविटी है एक्सकवेशन वर्क पैकेज की, वो है एक्सकवेशन एक्टिविटी, जिसका नंबर है 20। तो हम लीन कंक्रीट के सामने जो डिपेंडेंसी डालेंगे वहां नंबर डालेंगे 20। और जब कंक्रीट नीचे हो जाएगी लीन कंक्रीट, तो फिर हम ब्रिक वर्क करते हैं। तो ब्रिक वर्क की जो डिपेंडेंसी होगी वो लीन कंक्रीट के ऊपर होगी, और यहाँ आ जाएगा 22। और डैम प्रूफिंग जो है वो ब्रिक वर्क के ऊपर वो बेसिकली डिपेंडेंट होगा। डैम प्रूफिंग हम करते हैं लीन कंक्रीट से भी पहले और एक्सकवेशन के बाद, तो उसको हम कर लेंगे 20। और इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, लीन कंक्रीट जो है वो हम करते हैं डैम, बजाय एक्सकवेशन के बाद वो डैम प्रूफिंग के बाद हम करते हैं। इसको हम दोबारा ठीक भी कर लेते हैं, इसके स्पेल्स। और डैम प्रूफिंग ठीक हो गया। लीन कंक्रीट जो है वो डैम प्रूफिंग के ऊपर है, तो हम इसको 24 कर देते हैं। अब आप एरो देखेंगे, क्या एरो की शक्ल बनी है? यह है कि पहले ही डैम प्रूफ होगा, फिर आपकी लीन कंक्रीट होगी, और लीन कंक्रीट के बाद जो है ब्रिक वर्क होगा। तो ये बेसिकली आपकी एक अगर आप साइक देखें कि बेसिकली क्या हो रहा है कि रिलेशनशिप जो है ना वो बिल्कुल डिफाइन हो गया। टीपीसी किस चीज के ऊपर होगी? टीपीसी आपकी आएगी ब्रिक वर्क के ऊपर, जिसका नंबर है 23। और ब्रिक वर्क किसके ऊपर होगा? वो आएगा 25 के ऊपर, जो कि डीपीसी का नंबर है। रूफिंग किसके ऊपर डिपेंडेंट होगी? वो होगी 26 नंबर के ऊपर, जो कि ब्रिक वर्क है। और प्लास्टरिंग किसके ऊपर अवेलेबल होगी? अब प्लास्टरिंग होती है दो तरह की, एक दीवारों के ऊपर और एक छत के ऊपर या सीलिंग के ऊपर। तो वो उसी वक्त हो सकेगा जब रूफिंग भी कंप्लीट होगी और ब्रिक वर्क भी कंप्लीट होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 26,27। फ्लोरिंग किस चीज के ऊपर होगी? फ्लोरिंग जब हमारी रूफिंग हो जाती है और हमारी प्लास्टरिंग हो जाती है, तो उसके बाद हम फ्लोरिंग कर सकते हैं। तो हम बेसिकली प्लास्टरिंग के बाद कर लेते हैं 28। अब हमारा इलेक्ट्रिक वर्क्स का आ गया। इलेक्ट्रिक वर्क्स
जो है वो डिपेंडेंट है हमारी कंड्यूटिंग। तो कंड्यूटिंग हम कब करेंगे, जब हमारी ब्रिक वर्क हो जाएगा, जिसका नंबर है 26। यहाँ हम 26 दे देंगे। और उसके बाद हमारा पाइपिंग जो है वो डिपेंडेंट है हमारी कंड्यूटिंग के ऊपर, तो इसका 31 आ जाएगा। और उसके बाद हमारी वायरिंग जो है वो पाइपिंग पे है, इसका 32 आ जाएगा। और फिक्सचर जो है वो वायरिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसका 33 आ जाएगा। सो इन दिस फैशन वी विल कंप्लीट। बट यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि जो हमारी कंड्यूटिंग है वो 26 के ऊपर डिपेंडेंट है, जो कि ब्रिक वर्क है। और कंड्यूटिंग और एक प्लास्टर हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि प्लास्टर हम पहले कर रहे हैं और जो कंड्यूटिंग है वो हम बाद में कर रहे हैं, तो एक तरह से हम नुकसान कर रहे हैं। इसका हल ये है कि हम पहले क्या करते हैं कि पहले कंड्यूटिंग और प्लास्टरिंग को हम डिपेंडेंट कर देते हैं, जो भी उसके ऑलरेडी हमने किए हुए हैं उसके अलावा हम कॉमा डाल करके कंड्यूटिंग का जो नंबर है 31 एंड एक और कंड्यूटिंग है हमारे पास दैट इज 36 प्लम्बिंग वर्क बॉडी 36 एंड एंटर। अब हम इस एक्टिविटी को देखते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि ये इसमें 4 जगह से रिलेशनशिप आ रहा है। ओके, अब कंड्यूटिंग किसके ऊपर डिपेंडेंट थी हमारी, वो थी ब्रिक वर्क के ऊपर, दैट इज 26। और पाइपिंग जो है वो हमारी डिपेंडेंट है 36 के ऊपर। और फिक्सचर जो है वो डिपेंडेंट है हमारे 37 के ऊपर। एंड कनेक्शन जो है वो फिक्सचर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, सो 38। अब ये हमारी सारी की सारी लॉजिक जो है वो कंप्लीट हो गई। उसके बाद फिनिशेस हैं, डोर एंड विंडो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो हम कर लेते हैं कि जी हमारे हम अज्यूम करते हैं कि फ्लोरिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हम 29 ले लेते हैं। और वाइट वॉश जो है वो हमारा डिपेंडेंट है प्लास्टरिंग के ऊपर, 28 कर लेते हैं। और पेंट्स जो हैं वो डोर्स एंड विंडोज के ऊपर हैं, तो 41 कर देते हैं। और जो लॉन्स हैं वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हैं, किसी एक एक्टिविटी को बेसलाइन बना लें। हम कहते हैं जब छत पड़ जाएगा तो या प्लास्टरिंग हो जाएगी तो फिर हम जो है लॉन्स की तरफ चले जाएंगे, तो हम 28 कर देते हैं इसको। अब आप इसको हमने सारे प्रीडिसेसर जो है वो एंटर कर दिए हैं। और अब हम देखते हैं कि हमारे गैंट चार्ट की क्या शक्ल है। गैंट चार्ट आपका काफ़ी बड़ा हो गया है और आप व्हील माउस के साथ देखें तो आपकी ये शक्ल इस वक्त गैंट चार्ट की बन गई है। और इस वक्त अगर हम देखें कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस को देखें तो उसकी ड्यूरेशन जो आ रही है वो देखते हैं कि वो 21 डेज, लेकिन आगे क्वेश्चन मार्क, अभी सिस्टम श्योर नहीं है कि उसकी कितनी ड्यूरेशन आ रही है और उसके बारे में वो पूछ रहा है कि कितनी ड्यूरेशन आपने इसको देनी है। तो अब हम अगर देखें कि अभी तक के जो हमारे प्रोसेसेस हुए हैं टाइम मैनेजमेंट के, वो कौन कौन से हैं। एक हमारा प्रोसेस था टाइम मैनेजमेंट का, वो था कि हमने डिफाइन एक्टिविटी करनी थी, वो हमने कर लिया और एक हमने बड़ा अच्छा एक चीज़ बना ली। उसके बाद जो दूसरा हमारा प्रोसेस था टाइम मैनेजमेंट का, वो था प्रीडेसेसर देने या रिलेशनशिप देना, वो भी हमने डिफाइन कर लिया। अब जो तीसरी चीज़ है वो है ड्यूरेशंस देना। लेकिन जो ड्यूरेशंस है वो डिपेंड करती है कि आपके रिसोर्सेज क्या हैं। आइडियली जब आप वर्क शेड्यूल बना रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए कि पहले रिसोर्सेज एंटर करें और फिर जाकर के आप ड्यूरेशंस दें। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द अंडरस्टैंडिंग, आप लोगों के विजुअलाइजेशन के लिए सिंपली मैं ड्यूरेशंस पहले दे दूंगा, लेकिन आई विल एडवाइज कि आप ड्यूरेशंस जो हैं, क्योंकि ये ड्यूरेशंस जो भी मैं अभी दूंगा ये हमारी चेंज हो जाएंगी। तो व्हाट आई विल आस्क यू टू गो एंड सेव इट, सेव दिस थिंग, यहां तक का सेव कर लें। ये सेव का बटन है आपकी स्क्रीन पे, इसको आप क्लिक कर दें और फिर हम क्या करते हैं कि इसकी इस चीज की ड्यूरेशन हम बाद में भी कर सकते हैं। ओके, ये हमारा यहां तक की शक्ल बन गई है। अब हम प्रेजेंटेशन पे जाते हैं और देखते हैं कि वहां हमने क्या चीज है हमारे पास। ओके, सेटिंग द टास्क प्रीडिसेसर्स, ये हमने कर लिया। एंटरिंग ऑल प्रीडिसेसर्स, ये हमने कर लिया।
एंड देन सेटिंग द टास्क ड्यूरेशन। जो अगला स्टेप है वो अब हमने ड्यूरेशंस जो हैं वो एंटर करनी है, और वो ड्यूरेशंस कैसे एंटर करनी है, लेट्स सी और लेट्स डू दैट, और फिर हम देखते हैं कि हमारे क्या शक्ल बनती है हमारे प्रोजेक्ट की। सो अब हम इसमें से अब मैं इसकी टोटल प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन करता हूं 180, और 180 करके, बट आई कैन नॉट डू दैट। जब मैंने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके मैं इधर आना चाह रहा हूं तो ये क्लिक नहीं कर रहा ड्यूरेशन के क्लिक करने के बाद, और ये जो ऊपर नीचे वाले हैं ये भी बटन काम नहीं कर रहे हैं, ये फिक्स हुआ है। सो अब मुझे क्या करना है, इसकी ड्यूरेशन में चेंज नहीं कर सकता। इसी तरह ये वर्क पैकेज है, अब इसको चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं, ये भी नहीं हो रहा। ये वर्क पैकेज है, ये भी नहीं हो रहा। ये एक्टिविटी ये हो रही है। सो इसका मतलब क्या है कि ड्यूरेशन जो है वो एक्टिविटी लेवल पे हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, जिसकी यानी कि जो नीचे वाला लेवल होगा हम वहां करवाएंगे, और बाकी की ड्यूरेशन वो सिस्टम खुद ही कैलकुलेट करेगा। ओके, अब सर्वे के ऊपर हम अज्यूम करते हैं कि हमने 15 दिन लगाए। अब आपने करना क्या है कि इस सेल को, ड्यूरेशन वाले सेल को सिलेक्ट करना है, जिस तरह हम कोई भी सिलेक्ट करते हैं, डबल क्लिक नहीं करना, सिर्फ एक क्लिक करना है, और स्टार्ट टाइपिंग समथिंग 15 एंड एंटर। जैसे ही आप 15 करेंगे तो आप देखेंगे कि जो सर्वे है उसकी ड्यूरेशन उसने 15 डेज कर दी है। ओके, बिफोर दैट हम एक जो है चीज यहाँ देखेंगे कि हमारी कौन सी सेटिंग जो है वो ऑन है, उसको हम ऑफ करते हैं। टूल्स, ऑप्शंस, एंड देन आई लेट यू नो कि आपने कैसे करना है इस चीज को। शेड्यूल एंड कैलकुलेशंस। ओके, कैलकुलेशन मोड इज ऑटोमेटिक, गुड, एंड then we will get back to that thing. Okay, तो सर्वे पे हमने 15 डेज कर दिया। अब सर्वे को जब हमने 15 डेज किया है तो इन्फॉर्मेशन के ऊपर हम लेते हैं, लाइक किसी चीज की हमने सिलेक्शन कर ली सर्वे करने के बाद, और इन्फॉर्मेशन पे हम लेते हैं 2, तो सिंपली 2 करके आप एंटर कर दें तो आपकी ड्यूरेशन जो है वो फिक्स हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि हमारे गैंट चार्ट पे क्या असर हुआ। अब आप देखें कि जो गैंट चार्ट है, यहां आपने 15 डेज किया तो अकॉर्डिंगली उसकी लेंथ जो है वो 15 डेज हो गई। अब वो 15 डेज से थोड़ी सी ज्यादा इसलिए है कि दरमियान में 3 वीक आ रहे हैं, 3 वीकेंड्स आ रहे हैं, तो 3 वीकेंड्स की वजह से उसकी ड्यूरेशन, अब जो उसकी ड्यूरेशन है वो 15 डेज ही है, लेकिन जो उसकी डेट्स हैं, स्टार्ट और फिनिश डेट है, उसको देखते हैं। उसकी स्टार्ट डेट है 1 जुलाई, होना तो ये चाहिए था 16 जुलाई को खत्म हो, लेकिन ये 21 जुलाई को जा रहा है। क्यों? क्योंकि सैटरडे संडेज सिस्टम इस वक्त ऑफ ले रहा है। हम इसको सीखेंगे बाद में, फिलहाल हम इसके ड्यूरेशन, अब ट्रांसफर की ड्यूरेशन को मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं तो ये नहीं हो रही, ये फिक्स्ड है। इसका मतलब है मुझे नीचे एक्टिविटीज को चेंज करना पड़ेगा। नेगोशिएशन ऑफ प्राइस लाइक 3 डेज, और पेमेंट्स के ऊपर लाइक 1 दिन, और डिपार्टमेंटल अप्रूवल लाइक 7 दिन, और पोजेशन जो है वो 1 दिन, और आर्किटेक्चरल डिजाइन को हम दे देते हैं लाइक वो 1 हफ्ते में करते, और स्ट्रक्चरल डिजाइन जो है वो भी 1 हफ्ते में हो जाता है, और ड्राइंग्स जो हैं वो भी वो 3 डेज में बन जाएंगी, और लेआउट डिजाइन जो है वो 2 डेज में बन जाएगा। इसी तरह मैं सिविल वर्क्स और एक्सकवेशन को नहीं कर सकता, लेकिन अरेंजिंग एक्सकवेटर जो है वो मैं 1 दिन में कर लूंगा, और जो लेआउट है वो भी 1 दिन में कर लूंगा, और एक्सकवेशन जो है वो 7 डेज में करूंगा। फाउंडेशंस जो हैं, जो फाउंडेशंस हैं उनको अगर मैं बात करूं तो लीन कंक्रीट जो है वो 5 डेज में हो जाएगी, और जो ब्रिक वर्क है वो 10 डेज में हो जाएगा, और डैम प्रूफिंग जो है वो 1 दिन में हो जाएगी। डीपीसी जो है वो मैं 2 डेज में कर लेता हूँ। ब्रिक वर्क जो है वो मैं 35 डेज में करता हूँ, और रूफिंग जो है वो मैं 30 डेज में होगी, क्योंकि इसमें आपने रूफिंग में पूरा लेना है, लेंटर डालना भी और उसको ओपन भी करना। प्लास्टरिंग के अंदर 45 डेज, और फ्लोरिंग के अंदर अगेन 30 डेज, और फिर कंड्यूटिंग जो है वो 5 डेज में, और पाइपिंग जो है वो 3 डेज में, और वायरिंग जो है वो भी 3 डेज में, और फिक्सचर जो है वो 7 डेज में। प्लम्बिंग वर्क्स का अगर मैं निकालूं तो प्लम्बिंग वर्क की जो कंड्यूटिंग है हम कहते हैं कि लाइक 5 डेज में, और जो पाइपिंग है इस पे ज्यादा टाइम लगेगा, हम कहते हैं 10 डेज, और जो फिक्सचर्स हैं इस पे हम कहते हैं 15 डेज, और कनेक्शन जो हैं वो 2 डेज।
डोर्स एंड विंडोज जो सारे लगाने हैं वो हम कर लेते हैं 7 डेज, वाइट वॉश जो है वो हम कर लेते हैं 25 डेज, पेंट्स जो है वो हम कर लेते हैं 7 डेज, और लॉन्स हम कर लेते हैं 49 डेज या 50 डेज कर लेते हैं पूरा। अब जब हमने ये सारा कर लिया तो साथ में देखें कि कुछ चीजें खुद ही चेंज हो रही हैं, ये भी चेंज हो गया, सारे क्वेश्चन मार्क्स खत्म हो गए। ओके, तो टोटल ड्यूरेशन भी आप निकाल दिया है उसने सिस्टम ने, और वो है 233 डेज। जब मेरे पास 233 डेज की ड्यूरेशन आ गई है, ये मेरा पूरा प्रोजेक्ट है। अगर मैं अपने गैंट चार्ट को लेके आऊं तो वो देखें कितना बड़ा हो गया कि अब वो नजर ही नहीं आ रहा। तो अब हम इसको इस तरह करके सारे गैंट चार्ट को देख सकते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल हो रहा है हमें देखना। अब इसका हमें हल कोई करना है, बट अभी देखें अगर यहाँ तक अगर बात की जाए तो हमारा प्रोजेक्ट जो है उसकी ड्यूरेशन 233 डेज आ गई है। बट याद रखिए ये ड्यूरेशन है, लेकिन इसके अंदर जो छुट्टियां हैं वो शामिल नहीं, ये कैलेंडर डेज नहीं हैं, ये बेसिकली एक्चुअल डेज हैं, वर्किंग डेज हैं, और कैलेंडर डेज इससे भी ज्यादा हैं। अब मैं ये कहता हूं कि 233 डेज नहीं होना चाहिए, मुझे यही काम जो है वो 180 डेज में यानी कि 6 महीने में कंप्लीट करना है। तो मैं देखता हूं मैं कहां से अपने दिन जो है वो कम कर सकता हूं, लेकिन अभी फौरन मैं कुछ नहीं कर सकूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता कि किस एक्टिविटी को मैं कम करूंगा तो फिर मेरी बाकी एक्टिविटीज ठीक होंगी। इसके लिए मुझे क्रिटिकल पाथ होना मेरे पास जरूरी है, क्योंकि जब भी मैंने ड्यूरेशन अपने प्रोजेक्ट की कम करनी होती है तो मैं क्रिटिकल पाथ के ऊपर अपनी ड्यूरेशन एक्टिविटीज की कम करूंगा, तो फिर मेरी जो है एक्टिविटीज जो हैं उनकी ड्यूरेशन कम होगी। ओके, अब हम अपनी प्रेजेंटेशन पे दोबारा चलते हैं और वहां देखते हैं कि हमारे पास क्या है। अब हमने ड्यूरेशंस डाल दी हैं और ये एक प्रैक्टिस प्रोजेक्ट है, इसको आपने देखना है ड्यूरेशंस डाल के कि इसकी क्या शेप आपके सामने बनती है। अब जिस तरह के मैं दूसरी बात कर रहा था वो था टाइम स्केल, यानी कि अभी हमें वो गैंट चार्ट नजर ही नहीं आ रहा, तो अब हम टाइम स्केल को चेंज करना सीखते हैं। टाइम स्केल को चेंज करना बहुत आसान है। आपने करना यह है कि यहां जो आपका ये लिखा हुआ है डेज लिखे हैं और मंथ्स लिखे हैं, इधर आप राइट क्लिक करेंगे। जब आप राइट क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाती है टाइम स्केल, जूम, चेंज वर्किंग टाइम। तो आप यहां से टाइम स्केल को जो है वो चेंज कर सकते हैं। इस जगह आप टाइम स्केल को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप टाइम स्केल को क्लिक करते हैं ये वाली विंडो आपके पास आ जाएगी। यहां आपके पास ऊपर बटन है टॉप टियर, मिडल टियर, बॉटम टियर, नॉन वर्किंग टाइम। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ मिडल टियर इस वक्त सिलेक्ट है, आपने सिर्फ उसी को ही सिलेक्ट रहने देना है। और यहां यूनिट्स दिए हुए हैं वीक्स के, अब आप इन्हें कर दें मंथ्स के। यूनिट्स आप कर दें वीक्स के बजाय आप मंथ्स कर दें, और मंथ्स के बाद जो बॉटम टियर है वहां यूनिट्स दिए हुए हैं डेज के, इनको आप वीक्स कर दें। सो जब आपने मिडल टियर पे यूनिट्स को मंथ्स कर देना है और बॉटम टियर के ऊपर जाके यहाँ यूनिट्स आएंगे, यूनिट्स को आपने वीक्स कर देना है और ओके करें। जब आपने ओके किया तो अभी भी आपका प्रोजेक्ट जो है वो आपको उस तरह विजिबल नहीं है, तो अब आप इसको फर्दर छोटा करना चाहेंगे तो अब आप टाइम स्केल में जाएं, मिडल टियर को आप करें क्वार्टर्स और बॉटम टियर को आप करें थर्ड्स ऑफ मंथ्स। ओके, जब आप ओके करते हैं तो अब आप देखें आपका पूरा जो है गैंट चार्ट वो एक ही स्क्रीन के ऊपर यहां से लेके यहां तक ये सारा नजर आ रहा है। अब आप थोड़ा सा इसको मुनासिब जगह पे कर लें तो इस तरह अब आप इसको सारे को देख भी सकते हैं, राइट। तो ये बेसिकली एक हमारा वो तरीकाकार है कि कैसे अब हमने टाइम स्केल को छोटा करना है और कैसे हमने बड़ा करना है। अब यहाँ बेसिकली आपके जो हैं वो क्वार्टर्स आ रहे हैं कि थर्ड क्वार्टर इज दैट इज बिगिनिंग मंथ, मिडल और एंडिंग।
सो बिगिनिंग वाला 10 दिन, फिर अगले 10 दिन, फिर अगले 10 दिन, तो अब आपके पास ये इस तरह की शेप जो है वो एक बड़ी अच्छी सी विजिबल शेप जो आ चुकी है। टाइम स्केल को सेट करना हमने सीख लिया, हमने ड्यूरेशन एंटर करना सीख ली, और उसके बाद अब हम देखते हैं कॉन्स्ट्रेंट टाइप्स, और इसको हम करेंगे। और कॉन्स्ट्रेंट्स जो हैं एक्टिविटीज़ के होते हैं, और इसमें हमारे पास जो कॉन्स्ट्रेंट टाइप्स अवेलेबल हैं वो हैं एज सून एज पॉसिबल। जो डिफ़ॉल्ट कॉन्स्ट्रेंट है वो हमारा एज सून एज पॉसिबल का है। इसका क्या मतलब है कि जैसे ही, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारी दो एक्टिविटीज़ के दरमियान जो प्रॉब्लम था या जो रिलेशनशिप था वो था कि एक ख़त्म होगी तो दूसरी शुरू होगी, यानी कि फिनिश टू स्टार्ट डिपेंडेंसी थी। अब हमारी एक एक्टिविटी जो है वो पहले ख़त्म होनी है और दूसरी ने स्टार्ट होना है। सो अब जैसे ही पहली ख़त्म होगी दूसरी स्टार्ट हो जाएगी, तो ये है डिफ़ॉल्ट एज सून एज पॉसिबल। उसके अलावा हम ये लिख सकते हैं एज लेट एज पॉसिबल, कि जैसे वो फिनिश हो जाए, और क्या कंडीशन दें कि उस वक्त तक वो शुरू ना हो, दरमियान में हम एक कंडीशन डाल सकते हैं, तो ये दूसरा कंस्ट्रेंट हो सकता है। फिनिश नो लेटर देन, एक कंस्ट्रेंट हम लगा सकते हैं कि जो भी एक्टिविटी है, एक एक्टिविटी के ऊपर है कि जी उसने तो 30 अप्रैल के बाद नहीं खत्म होना, उससे पहले पहले खत्म होना, तो ये लग सकता है। स्टार्ट नो लेटर देन, दूसरा यह है कि एक हमें पता है कि एक एक्टिविटी ने स्टार्ट होना है जनवरी में, लेकिन जनवरी की किसी डेट पे हम लगा देते हैं कि 15 जनवरी तक तो लाजमी स्टार्ट हो जाए वो, सो ये कंस्ट्रेंट हो सकता है। फिनिश नो अर्लियर देन, स्टार्ट नो अर्लियर देन, मस्ट स्टार्ट ऑन, मस्ट फिनिश ऑन, तो ये कुछ कंस्ट्रेंट टाइप्स हैं जो हम इसमें देख सकते हैं। सो ASAP with this constraint, Microsoft project schedules the task as early as it can. So बाकी सारी डिस्क्रिप्शन भी दी हुई हैं, ये आप लोगों के लिए मैंने स्लाइड में डाल दिया है, इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। प्रोजेक्ट की जो फाइनल शेप आ चुकी थी अभी तक वो हम देख चुके थे, और अब हम देखते हैं कि गैंट चार्ट को रीड करने का क्या तरीकाकार है। ये जो बार है, ये वाली जो बार है, ये बेसिकली आपकी एक्टिविटी की ड्यूरेशन को शो कर रही है। ये वाली जो लाइन है, ये लाइन है, ये रिलेशनशिप को शो कर रही है। यहां देखें ये बार और ये बार, इसके दरमियान में ये कुछ भी नहीं है, एक बार यहां खत्म हो गई और उसके बाद एरो आ रहा है, तो ये जो फासला है या ये जो डिस्टेंस है, ये जो टाइम है, इसको हम स्लैक बोलते हैं, जो हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पढ़ा हुआ है क्या चीज होती है। यहां आके आप देखेंगे कि जो एक्टिविटीज हैं वो मर्ज हो रही हैं, इसी तरह कुछ जगहों पे वो बर्स्ट हो रहा होता है, तो ये बेसिकली हम गैंट चार्ट को, जिस तरह ये जो है इस जगह हम मर्ज हो रही हैं और इस जगह भी मर्ज हो रही हैं, तो हम बर्स्ट को भी इस तरह देख सकते हैं। व्हाट इज लैग एंड व्हाट इज लीड टाइम। तो जब कोई टास्क जो है हम एक बात करते हैं, मसलन एक लैग है, तो उसका आपको पता है 1 FS प्लस 2 डेज अगर आप करें, यानी कि 2 दिन आपने उसके बाद करना है, तो ये जो 2 दिन का फर्क आपने डाला ये लैग है। और दूसरा ये है कि आपने कहा फिनिश होने से पहले पहले दूसरी स्टार्ट हो जाए एक दिन, तो ये आपका लीड हो गया। हम अब लैग और लीड एंटर करना देखते हैं कि कैसे हमने वो एंटर करने हैं किसी ऐसी एक्टिविटी के जिसकी हमारे पास ओके। अब हम यहाँ देखें अगर, तो इसको हम सर्वे जो जारी है लेकिन साथ साथ इंफॉर्मेशन भी जारी है, तो हम इसका एंटर करेंगे 4FS। अब सर्वे 15 दिन चलेगा, लेकिन हम कहते हैं कि 10वें दिन ही सर्वे शुरू हो जाए, इंफॉर्मेशन इकट्ठी शुरू हो जाए, तो 4FS -5। देखें अब पूरा का पूरा ये जो शेप है ये चेंज हो गई है। इसको मैं आपको बड़ा करके भी दिखा सकता हूँ, ये देखें। Now this is called lead। और अब हम लैग की बात करते हैं, और अब मैं ये चाहता हूं कि जब सर्वे हो जाए तो उसके बाद फिर हम कुछ दिन के बाद 4FS प्लस 3 डेज के बाद हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग करें।
+3, तो व्हाट विल हैपन कि ये 3 दिन का फ़र्क के बाद, या मैं कहता हूँ कि उसके तकरीबन 60 डेज़ के बाद हम या 30 डेज़ के बाद हम काम शुरू करें। तो ये जो है हमारा एक लीड और लैग का कंसेप्ट है। ये दोनों चीज़ें अब हमें करनी आ गई हैं कि लीड कैसे करते हैं और लैग कैसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सो इसका कंसेप्ट भी हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद जो चीज़ है, एक बड़ी इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है टास्क इन्फॉर्मेशन फॉर्म। सो टास्क इन्फॉर्मेशन फॉर्म के ऊपर अब हम बात करेंगे कि जब हम किसी भी टास्क को डबल क्लिक करते हैं, लाइक मैं किसी भी टास्क को, किसी एक टास्क को डबल क्लिक करूंगा, तो जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। इसको आप खोलने का एक और तरीका भी है कि आप किसी भी टास्क को सिलेक्ट करें और यहाँ आपके पास टास्क इन्फॉर्मेशन बॉक्स की एक ऑप्शन है जो आप शिफ्ट प्लस F2 करके भी अचीव कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके से शिफ्ट F2 कर लें, डबल क्लिक कर लें या इस बटन को क्लिक कर दें तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ देखें आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो क्या हैं कि आप का नाम यहाँ है आपकी एक्टिविटी का या आपके टास्क का, आप इसको चेंज कर सकते हैं। % कंप्लीट इस वक्त आ रहा है लेकिन अभी तो हमने बेसलाइन नहीं किया तो इसको अभी छोड़ दें। ड्यूरेशन यहाँ आ रही है, आप ड्यूरेशन को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। 15D आ रहा है, आप इसको देख सकते हैं। स्टार्ट और फिनिश डेट्स भी आ रही हैं और हमने अभी इसके साथ भी खेलना है, लेकिन ये है जो जनरल कंडीशंस इसकी आती हैं। अब इसके हम चले जाते हैं प्रीडिसेसर के टैब में, और जैसे प्रीडिसेसर के टैब में जाते हैं तो देखते हैं ये एक्टिविटी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हम इसी तरह एक और एक्टिविटी देखते हैं जो काफ़ी सारी एक्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंट हो, जिस तरह हमारी प्लास्टरिंग थी। तो प्लास्टरिंग के जब प्रीडिसेसर के हम जाते हैं तो देखें ब्रिक वर्क फिनिश टू स्टार्ट है, रूफिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, कंड्यूटिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। और कंड्यूटिंग, 2 कंड्यूटिंग है, एक इलेक्ट्रिक की और एक हमारी जो है प्लम्बिंग की, और इनकी टाइप्स भी दी हुई हैं और इनके लैग्स भी दिए हुए हैं कि कितने डेज का लैग है। तो ये यहाँ सारा 0 डे का लैग हमारे पास जो है वो शो हो रहा है। उसके बाद इसके रिसोर्सेज अभी कुछ नहीं है, हम रिसोर्सेज असाइन करना सीखेंगे और फिर हम, अगर इसको मैं देखूं तो मेरे पास कोई रिसोर्सेज इस वक्त अवेलेबल नहीं है। एडवांस लेवल पे अगर आप देखें तो डेडलाइंस हैं, अगर आप डेडलाइन देना चाहें तो आप डेडलाइन दे सकते हैं, लेकिन मैं अभी डेडलाइन नहीं दूंगा और आपको बताऊंगा डेडलाइन क्या चीज़ होती है और माइलस्टोन क्या होता है। कॉन्स्ट्रेंट टाइप्स हमने 8 पढ़े थे जो हमारे पास अवेलेबल थे, 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स जो हैं सारे के सारे यहाँ हैं, आप उसमें से कोई भी कॉन्स्ट्रेंट चूज कर सकते हैं। यहाँ ये बड़ी मजेदार चीज़ है जो कि है टास्क टाइप, कि ये फिक्स्ड यूनिट टाइप है। इसमें 3 ऑप्शंस हैं आपके पास, एक है फिक्स्ड ड्यूरेशन, एक है फिक्स्ड यूनिट और एक है फिक्स्ड वर्क। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आने वाले सेशंस के अंदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इस, और कैलेंडर इस वक्त इसके साथ क्या असाइन है, इस वक्त इसके साथ कोई कैलेंडर असाइन नहीं है और इसका WBS कोड ये यहाँ दिया हुआ है 1.3.6, लेकिन हम इसको वहाँ भी अर्न वैल्यू मेथड भी % कंप्लीट का है। सो अभी इन चीज़ों को हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ देखेंगे। सो इस तरह हम किसी भी टास्क के बारे में इंफॉर्मेशन अगर लेनी हो तो डबल क्लिक करके उसका टास्क इंफॉर्मेशन डायलॉग बॉक्स हम खोल के उसको देख सकते हैं। अब हम दोबारा प्रेजेंटेशन पे जाते हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी सीन, रिसोर्सेज, एडवांस्ड एंड इंफॉर्मेशन बॉक्स। सो अब जो हम काम करने जा रहे हैं, अब हम MS प्रोजेक्ट पे दोबारा वापस जाएंगे और इसको हम सेव कर लेंगे इस काम को। अब ये हमारे पास एक मॉडल जो है वो तैयार है। अब यहाँ एक चीज़ आएगी कि हमारे पास हम एक नया सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करना सीखेंगे और वो जो सॉफ्टवेयर है उसको हम देखते हैं कि वो सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या चीज़ है। दैट इज़ WBS Pro, और WBS Pro को हम इंस्टॉल भी करेंगे और साथ में उसको ऑपरेट करना भी सीखेंगे। सो WBS Pro का सेटअप मेरे पास है और आप लोगों के पास भी होना चाहिए। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। WBS Pro को गूगल में सर्च करें तो आपके पास आ जाएगा, अदरवाइज ये फिर कोर्स कंटेंट के साथ भी होगा। सो व्हाट यू नीड टू डू इज डबल क्लिक करें। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे आपके सामने एक विंडो आ जाएगी
जो लोग तो MS प्रोजेक्ट यूज कर रहे हैं 2007, उनके साथ ये WPS Pro 4.7 फंक्शन करेगा। जो लोग कर रहे हैं MS प्रोजेक्ट 2010 एंड 13, उसके साथ फिर आपको 4.9A वर्जन है, जो कि वहां से फ्री डाउनलोड हो सकता है। डेमो वर्जन जो स्टूडेंट वर्जन है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और वो फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। ओके, सो WPS चार्ट प्रो 4.7 नेक्स्ट एक्सेप्ट। आप इसी तरह जिस तरह के स्टेप्स होते हैं आप सारे करते जाइए और रेडी टू इंस्टॉल नेक्स्ट करेंगे और ये सिंपल आपका इंस्टॉल कर देगा। अब यहाँ आपने इसका यूजर नेम देना है। सो आई विल गिव माई नेम ओवर देयर, यू कैन हैव योर नेम, और उसके बाद आई हैव द प्रोडक्ट की, सो आई विल डू दैट एंड फुल वर्जन, बट आप डेमो वर्जन करके भी कर सकते हैं। सो दैट इज जब आप इसे ओके करते हैं तो ये एक ऑप्शन आपसे पूछेगा कि मॉडिफाई माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, सो you want to modify Microsoft project, so click OK। जैसे ही आप OK करते हैं, so it will take some time and it will ask you if are you ready to allow this thing to create a shortcut on your desktop. So I'm selecting yes option over there, OK, and my installation is complete. When I'm done with that, what will happen? I will have my desktop and I will see if I have a okay over there is an option that is called WPS Chart Pro, और इसको जब मैं डबल क्लिक करूंगा so I will be having this screen and this tip of the day will be there, but मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसे कर दूंगा क्लोज। जब मैं क्लोज करूंगा तो मेरे पास इस वक्त एक ऑप्शन आ रही है, ये मेरे पास पूरी स्क्रीन है और इसके अंदर मैंने अब अपना WPS चार्ट बनाना है। ये बड़ा मजेदार टूल है और आज हम इसको WPS चार्ट बनाना सीखेंगे। इन मीन टाइम जो हमारी फाइल है MS प्रोजेक्ट की, उसको हम सेव करके और उसको क्लोज कर देते हैं और अब हम WPS चार्ट प्रो के साथ थोड़ा सा काम करेंगे। सो WPS चार्ट प्रो के अंदर अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। इसको अभी हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और फिर हम इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे जब हम नेक्स्ट क्लास जो या नेक्स्ट सेशन कर रहे होंगे। जिस तरह के हमने बात की थी कि हम डिफरेंट जो है वो तरीकों से WPS बना सकते हैं, जो भी हमारा तरीकाकार है, लेकिन हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, उसको डीकम्पोज करना है। सो इसके लिए आपने WPS प्रो चार्ट प्रो को यूज कर सकते हैं। इस वक्त देखें यहाँ आपकी स्क्रीन के ऊपर ये 4 बटन्स होंगे। एक आ रहा होगा इंसर्ट टास्क लेफ्ट, इंसर्ट टास्क राइट, इंसर्ट टास्क अप एंड इंसर्ट टास्क बिलो। लेकिन ये सारे इस वक्त काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक ऑप्शन है आपके पास, सो यू नीड टू क्लिक दैट। सो आपने उसको क्लिक कर दिया। जैसे ही आपने उसको क्लिक किया तो आप देखेंगे कि एक चीज क्रिएट हो जाएगी न्यू टास्क के नाम से, और उसके अंदर लिखा हुआ है न्यू टास्क, और बाकी ऑप्शंस भी अब आपके पास आ गई हैं। इस न्यू टास्क के अंदर मैं चाहता हूं कि मेरा प्रोजेक्ट का नाम लिखा आ जाए। हम अज्यूम करते हैं कि हमने एक जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस का जो है WPS वो क्रिएट करना है। सो न्यू टास्क के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ मेरे पास एड्रेस बार है। एड्रेस बार के साथ एक क्रॉस का बटन है और एक ओके का बटन है। सो जैसे ही मैंने न्यू टास्क को सिलेक्ट किया और साथ में बैक स्पेस करके इसको डिलीट किया या डिलीट का बटन दबा के डिलीट किया, तो अब आप देखें मेरे पास क्रॉस और करेक्ट ओके की ऑप्शन ऑन हो गई। अब मैं यहाँ लिखता हूँ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस एंड आई क्लिक ओके, और यहाँ ये मेरी ऑप्शन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस आ गई। अब मैं बेसिकली चाहता हूं कि मुझे इस व्यू के अंदर सिर्फ मुझे पता चल रहा है कि मेरा ये कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके साथ WPS कोड नहीं आ रहा।
तो WBS कोड के लिए यहाँ मेरे पास हैं जी व्यूज, और व्यूज के अंदर मैं चला जाऊंगा और यहाँ मेरे पास है ऑप्शंस, प्रोग्रेस व्यू, प्लानिंग व्यू, आर्स एंड कॉस्ट व्यू, फ्लैग्स व्यू, क्रिटिकल पाथ व्यू, क्रिटिकल पाथ 2 व्यू। सो आई विल सेलेक्ट क्रिटिकल पाथ 2 व्यू। जैसे मैं करूंगा अब मेरे पास देखें काफी सारी ऑप्शंस आ गई हैं। मेरे पास ड्यूरेशन भी आ रही है, परसेंटेज भी आ रही है और डेट्स भी आ रही हैं, लेकिन अभी मैं किसी चीज को इनमें से क्लिक नहीं करूंगा, बल्कि मैं कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस जो है उसका फर्दर आप नीचे जो है उसके एलिमेंट्स डिजाइन करूंगा। सो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज राइट इंसर्ट टास्क राइट करूंगा। जैसे मैं इंसर्ट टास्क राइट करूंगा तो मेरे पास एक और टास्क क्रिएट हो जाएगा, लेकिन यहाँ नंबर देखें वो आ रहा है 1.1, ये था 1, तो ये लेवल 1 आ गया, ये लेवल 1.1 आ गया। अब इसी तरह मैं फिर इसको करके राइट करूंगा, इस तरह मैं इसको करके जो है वो डाउन करूंगा तो मेरे पास 1.2 आ जाएगा। इसी तरह फिर डाउन करूंगा 1.3, जो भी चीज सिलेक्ट है फिर डाउन करूंगा और फिर डाउन करूंगा, तो मेरे पास 5 वर्क पैकेजेस आ गए। अब इस न्यू टास्क के अंदर मैं लिखूंगा इस जो मैंने बेसिकली किया क्या है कि ये वाला जो मेरे पास डिफरेंट सेल्स हैं, अब अगर आप गौर करें तो मैं किसी एक के ऊपर जूम करके आपको दिखाता हूं। मैंने बेसिकली क्या कर रहा हूं, कंट्रोल दबा करके उसका व्हील बटन जो है माउस का वो यूज कर रहा हूं। ऊपर नीचे करने से कंट्रोल दबा के रखें और व्हील बटन के साथ आप इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं। मैं इसको भी चेंज कर सकता हूं, इस वैल्यू को, और यहां देखिए 0% आ गया। इस वैल्यू को भी चेंज कर सकता हूं, इस वैल्यू को भी चेंज कर सकता हूं, इस वैल्यू को भी चेंज कर सकता हूं और इस वैल्यू को भी चेंज कर सकता हूं। मैं जो कह रहा हूं वो ये है कि हमें जो मैं चेंज करना चाह रहा हूं इस वैल्यू को, यानी कि नाम को। सो मैं छोटा करूंगा और दोबारा न्यू टास्क, और पहला जो मेरा था वो था लैंड एक्विजिशन, और एंटर। जैसे मैंने एंटर किया लैंड एक्विजिशन का आ गया। उसके बाद दूसरा था मेरा डिजाइन्स, और फिर था मेरा सिविल वर्क्स, और फिर था इलेक्ट्रिक वर्क्स, और फिर था मेरा प्लम्बिंग वर्क्स, अब मैं ये तो सारे सबऑर्डिनेट हो गए बड़े प्रोजेक्ट के। इसका कोड है 1 और इसका कोड है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5। तो अब मैं यहां से अपना इस चीज के ऊपर इनको सब फर्दर सबऑर्डिनेट्स क्रिएट करूंगा। तो इसके ऊपर जब रख के मैं राइट करूंगा तो इसका मेरा सबऑर्डिनेट क्रिएट हो जाएगा। 1.2 के ऊपर रख के मैं राइट करूंगा, फिर 1.3 के ऊपर रख के राइट करूंगा, 1.4 के ऊपर राइट, 1.5 के ऊपर राइट। अब मेरे ये सबऑर्डिनेट्स क्रिएट हो गए। अब इसके 2 हैं, इसके 2 हैं, इसको भी मैं 2 डाउन एरो के साथ करके, बेसिकली मैं ये 4 एरोज यूज कर रहा हूं और कुछ भी यूज नहीं कर रहा। अब आप देखेंगे इसके साथ कितना खूबसूरत एक WBS वो क्रिएट होना शुरू हो गया। लैंड एक्विजिशन के अंदर हमें पता था पहला है सिलेक्शन, सेलेक्ट हमारा था जो वर्क पैकेज था। उसके बाद हमारा था पेमेंट, और उसके बाद हमारा था पोजेशन। डिजाइन के अंदर हमारा था लेट्स से आर्किटेक्चरल डिजाइन, और फिर हमारा था स्ट्रक्चरल डिजाइन, और फिर हमारा था लाइक लेआउट, और इसी तरह फिर हमारा यहाँ था एक्सकवेशन, और इसके बाद हमारा था एक्सकवेशन के बाद था फाउंडेशंस, और फाउंडेशंस के बाद जो था वो था ब्रिक वर्क, DPC। अब लेकिन इसके और भी नीचे थे तो अब मैं और ज्यादा इसमें ऐड कर लेता हूं। सो बाय डूइंग दिस, बाय यूजिंग दिस बटन,
सो डीपीसी के बाद आ जाएगा मेरा ब्रिक वर्क, फिर मेरा आ जाएगा रूफिंग, और फिर मेरा आ जाएगा प्लास्टरिंग, और फिर मेरा आ जाएगा फ्लोरिंग। उसके बाद एक्सक्वेशन की अगर मैं देखूं तो एक्सक्वेशन के मेरे दो सब हो सकते हैं। अगर मैं इस पे देखूं तो एक्सक्वेशन का हो सकता है मेरा एक तो एक्सक्वेशन में मैंने किया था एक्सकवेटर अरेंजमेंट, और फिर था लेआउट। So in this fashion, within few moments, within like 10 or 15 minutes, I can create RWBS. So you need to create this WBS as well. And next day we will meet, we will talk on this WBS chart pro in detail, a little bit more detail, and then we will continue with the remaining MS project training. So for now, till now we are very much okay. एंड इसको अब आप सेव करेंगे, सेव एज, और मैं इसको करूंगा डेस्कटॉप के ऊपर। आप अपनी जगह देख लीजिएगा। मैं कहूँगा COMSATS virtual MS training dot training WBS save. So this has been saved, and let's go to the presentation. So we have learned how to install WBS Pro software, and when next time we will meet, we will be talking on this software good detail, and then how this software interacts with the thing that is MS project. So this is all from for this session. Let's have the summary of. So we do know now how to insert relationships, एंड उसके लिए हम 4 रिलेशनशिप टाइप्स हमने पढ़ी, और फिर हमने कैसे एंटर करना है कि प्रीडिसेसर के कॉलम के अंदर हमने जिस टास्क का नंबर है वो डाल के, और साथ में रिलेशनशिप टाइप लाइक FS है, SS है, जो भी है वो देना है। उसके बाद हमने ड्यूरेशंस इंसर्ट करना सीखी, और टाइम स्केल को कैसे आपने चेंज करना है। राइट क्लिक करके टाइम स्केल के ऊपर, टाइम स्केल के ऑप्शन में जाके जो हमारे हमारे डिफरेंट टीयर्स हैं, हमारा बॉटम टीयर है और हमारा मिडिल टीयर है, उनको चेंज किया था हमने। लैग और लीड का कंसेप्ट हमने देखा था। फिर हमने कॉन्स्ट्रेंट टाइप्स पढ़े थे कि 8 तरह के कॉन्स्ट्रेंट टाइप्स हैं। आई विल सजेस्ट यू पीपल कि आप उसके अंदर ज़रा डीपली उसको देखें, और फिर एट द एंड ऑफ द डे हमने WBS चार्ट को जो है वो इंस्टॉल करना सीखा था, और इंस्टॉलेशन के अलावा हमने उसके अंदर फिर एक रफ सा एक WBS भी बनाया है। अब हम जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो उसको रिफाइन भी करेंगे और उसको फर्दर इम्प्रूव भी करेंगे। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। आई से थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।